Hi, I'm Harminder Singh and I'm going to cover the three best films of year 1945. The 1945 is considered as one of the best years of the Hindi film music. The reason? The year introduced the legendary singer Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi, and also established Suraya as the lead singer of the Hindi film industry. In addition, the year also introduced the famous character actor Mukri and also recognized the popular film of Hindi film industry, K.N. Singh. Before I dive into the details of my best films of 1945, I would like to share some of the top grossers of the year. The music of the film made it the highest grossing Indian film of 1945. Gaon Ki Gori, the second highest grosser of the year and introduced Mohammad Rafi. Badi Maa, the third highest grosser of the year and introduced Lata Mangeshkar. Phool, the fourth blockbuster movie of the year. Tadbir, one of the biggest hit of Suraya in 1945. Chand Chakori, the sixth top earner of the year. Humayun, the film established K.N. Singh as an actor. To start with, Zeenat, directed by Syed Shaukat Hussain Rizvi and produced by Shiraz Ali Hakim and Ramzan Ali S. Lakhani, starring Noor Jahan, Yaqub and Karan Diwan. It is the story of a young girl, Zeenat, played by Noor Jahan, who loses her husband Sharafat, played by Majid, a few days after her wedding as a result of a fall from a horse, but not before they have spent a night together unknown to others. The only person to see them there is his younger brother, Liaquat, played by Yaqub, who leads a wandering life. The story is about her struggles following the death of her husband and how she raises her child and so on. रहे नाम अल्लाह का और मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। हैं? तुम कैसे? रात को तो इनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी बातें कर रहे थे। सुबह आकर देखा तो बेहोश पड़े थे। सेरिब्रल हेमरेज तो था ही, मगर एग्जेशन ने इनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। मगर साहब, ये तो यहाँ से हिले तक नहीं। बगैर एग्जेशन की ये हालत नहीं हो सकती। लियाकतियाँ, तुम तो रात भर यहीं थे, इनकी हालत कैसे खराब हुई? दिल की ठंडक से। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। The music of the film made it the blockbuster movie of 1945, especially for its famous all-female qawwali, Aahe Na Bharin Shikwe Na Kiye, sung by Zohrabai Ambalewali, Noor Jahan and Kalyani, was very popular then and remains so even today. ना मारना, ये दोनों खुदा की काम है। बेवकूफ कब्र पर फूल चढ़ा गए। अरे दीवाने इतना नहीं जानते कि सुबह तक मुरझा जाएंगे, हैं? अब्बा को तस्लीम करो। हाँ, ऐसे आपकी बेटी आपको तस्लीम करती है। बहुत बुरे वक्त गुजारे। सुन लिया तुमने? अरे है, खुदा गारत करे, ये सईदा कौन है? ये तुम उसी से पूछो। महर 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया, तुम्हें मंजूर है? ये काय साहब, हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो? वो तो मर चुके। मर चुके? मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजिज खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजिज खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। काई साहब, ये शादी नहीं हो सकती। अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। को एक पागल के कहने का यकीन नहीं, तो शराफत की डायरी तो याद होगी और ये भी याद होगा कि उन्हें डायरी लिखने की आदत थी। ये मरे हुए शौहर की निशानी है। जीनत, तुम बेगुनाह हो। The second blockbuster movie of the year is Gaon Ki Gori, produced and directed by K. Amarnath, and the main cast included Noor Jahan, Durga Kote,
and Nazir. समझा कि खेत का मालिक आ गया। क्या खेत मेरा नहीं? हाँ हाँ हाँ, खेत भी तेरा, मैं भी तेरा। हाँ हाँ, मैं भी तेरा। रानी, एक बात तो बात करना अपनी माँ बहना से। मैं पूछती हूँ ये गन्ने क्यों तोड़े तूने? अरे गन्ना ही तोड़े हैं। The story is about a troublemaker village boy played by Nazir who was convinced to join the armed forces is sent on the war front. Later, he comes back victorious and marries his girlfriend. अब क्या करूँ तू ही बता। यूं ही बाप दादा का नाम रोशन करता रहे और क्या? जी माँ, मैं कुछ भी नहीं करता, लोग जबरदस्ती झगड़ा खड़ा कर देते हैं। तू ऐसे लोगों में जाता ही क्यों है? तो फिर क्या करूँ? कुछ काम काज कर। क्या बच्चा है तू? A noteworthy feature of this film is that it has the first Hindi song sung by the legendary Mohammad Rafi. लो। जब प्रेम करने से एकदम रोना आ जाता है तो लोग प्रेम करते ही क्यों हैं? तू यहाँ कैसे आई बिल्लू? अबे तू कौन होता है पूछने वाला? ये इनके मामू लगते हैं। अबे और मेरा नाम लिखवा दिया। लो, तेरा नाम लिखवा दिया। ये होता कौन हरी का बच्चा मुझे भर्ती कराने वाला? देख लेता हूँ। अरे जानी, अरे मैं कहता हूँ ये सरकारी मामला है, जल्दी न कर, नहीं किसी और मुसीबत में फंस जाएगा। भला क्या करूंगी? वाह, मेरी जिंदगी रही तो मैं तुझे इससे भी बढ़िया वाले पहनाऊंगा। मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ। जानी, क्या है माँ? कहाँ चले? कहीं नहीं, जरा बाहर जाता हूँ। जानी, भैया। माँ, तू सच कहती थी माँ, अब देर हो चुकी है, चल घर चले। अरे चल पगले, मैं तुझे दूल्हा बनाऊंगी। माँ, हाँ हाँ भैया, सब ठीक हो गया। The other hit movie of the year is Humayun, directed by Mehboob Khan and starring Ashok Kumar, Veena, Narges Dutt, Chandra Mohan and Shah Nawaz. और तुम तो राजकुमारी हो, याद रखो मेरी बेटी बनकर रहोगी। लेकिन ये झंडा इसी तरह उड़ता रहेगा। जरूर उड़ता रहेगा, लेकिन मेरी बेटी बन जाने के बाद वचन देते हैं। बाबर ऐसी निकल आई कि हम दुश्मन को प्यार करने पर मजबूर हो गए। खाली प्यार से काम न चलेगा शहजादे, चंदेरी ने वापस कर दो। चंदेरी मुझे यूं नहीं चाहिए हुजूर, जिंदा रहा तो तलवार से ले लूंगा। अच्छा भाई, यूं ही सही। बेटी, आज की रात ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन मेहमान बनने को मैं तैयार नहीं। बच्चे बुजुर्गों से जिद नहीं करते कुमार। और ये तो तुम्हारा और हुमायूं का झगड़ा है, आखिर भाई इसमें हमारा क्या कसूर? जिसके गरीबान तक मेरा हाथ पहुंच सके। मैं समझ न सका बानो, तुम्हारा मतलब क्या है? शहजादे, मेरे उसूल दिल की मुखालिफत कर रहे हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ जमीन की बसने वाली हमीदा, अगर आज तू आसमान तक पहुंच भी गई तो एक दिन जरूर गिरा दी जाएगी। कि शहंशाह हुमायूं का और मेरा झगड़ा आपस का झगड़ा है, इसमें दूसरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिंदा बचा तो We dedicate this movie to our popular white-collared gentleman villain, K.N. Singh. K.N. Singh got his first break by Prithviraj Kapoor in Sunhere Sansar in 1936. His first Golden Jubilee movie was Bhagwan in 1938. Since then, he appeared in several iconic films with all leading actors of the time. Here are some video आप clips. राजकुमारी रह सकती हैं सिर्फ एक सूरत से, अगर रणधीर की जगह जय सिंह। वरना क्या होगा? आप तख्त पे नहीं बैठ सकती, वो जमाना गुजर गया, बाबर मर चुका है। मगर मैं भी जिंदा हूँ। ये तख्त मेरा है, ये राज मेरा है, ये हक मेरा है। तारा सिंह, अंदाता सुल्तान बहादुर शाह ने क्या जवाब दिया? अंदाता सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। रणधीर मुझ पर जरूर हमला करेगा। आप चंदेरी पर बगैर किसी जंग के कब्जा फरमा लीजिएगा। कुमार मेरे साथ जंग में उलझा होगा, अचानक उसे भी आ घेरिएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता जय सिंह कि शहंशाह हुमायूं अपनी बहन के खिलाफ
इन तमाम बातों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा सुल्तान। Now, as I wrap up, I'd like to thank YouTube, Shemro, Ultra Video, Gold Movies, Sipple, and all other internet sources which helped me make this video. Now, next week is a special week, and I'm going to present a special segment on Hyderabadi movies. Stay tuned to see the segment in my next week's episode. And if you like this video, please share it with your family and friends. Till then, see ya.